अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। डेली करंट अफेयर्स की आज की वीडियो में मैं आपके साथ हूं और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ 1 से लेके 10 नवंबर 2021 तक। तो इन 10 दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Question number 1, International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists is being observed on which date annually? तो जर्नलिस्ट्स के जो खिलाफ जो तशद्दुद होता है, जो क्राइम्स होते हैं, उनकी रोकथाम का जो दिन है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 नवंबर। It is UN recognized day for end of killing and harassing journalists and give away to freedom of expression. Question number 2, International Day for preventing the exploitation of the environment in war and armed conflict is being celebrated on which date annually? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 नवंबर। दिस इज आल्सो UN recognized day to insist for resolving issues through dialogue and prevent from use of war and conflict with harm the environment as well. Question number 3, World Day of Radiology is being celebrated on which date annually? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 नवंबर। It is an annual event to promote the role of medical imaging in modern healthcare. William Conrad Roentgen discovered X-ray by chance while investigating cathode rays on 8 November 1895। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि एक्सरे जो है वो किसने डिस्कवर किया। तो ये जो है विलियम कोनार्ड रोटेंजन, इसने डिस्कवर किया था और ये कब किया था? ये 8 नवंबर 1895 में किया था। तो इसी दिन के हिसाब से वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एनुअली? तो वर्ल्ड अर्बनिज्म का जो दिन है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 नवंबर। The aim of this day to highlight the importance of planning in creating livable communities. Question number 5, which city of Pakistan declared most polluted in the world? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहौर। Lahore left behind the Delhi India on 1 नवंबर 2021। तो पहले जो है ये दिल्ली इंडिया का जो सिटी है ये पहले नंबर पे था पॉल्यूटेड, लेकिन अभी लाहौर जो है वो 1 नंबर पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6, PIA launched the regular services to which city of Iraq on 13 अक्टूबर 2021? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नजफ। PK-219 special flights of PIA landed at Najaf, Iraq with 91 passengers including Iraqi ambassador for Pakistan Hamid Abbas Lufta and CEO of PIA अरशद मलिक। तो ये पॉइंट्स भी इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि इराक़ी एम्बेसडर जो है वो अभी कौन है पाकिस्तान में? तो वो हामिद अब्बास लुफ्ता हैं, और जबकि जो है चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA के जो मौजूदा हैं वो हैं अरशद मलिक। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7,
Recently, Pakistan Navy participated in Nusrat 2021, a multinational operations exercise in which country? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की। The exercise featured the PN Explosive Ordnance Disposal Team with teams of other countries under the auspices of Turkish authorities. Question number 8. G20 agreed on which target limiting global warming during with UN climate talks in its summit in Rome, Italy? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.5% सेल्सियस, यानी इस पे जो है वो एग्री हुए हैं कि इसको जो है 1.5 सेल्सियस तक जो है वो डिक्रीज किया जाएगा। नियरली 80% इमिशन ऑफ वर्ल्ड्स कार्बन बाय मेजर ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। तो जो पॉल्यूशन जो होती है, जो जहरीली अखराजात होता है गैसेस का, उसका 80% जो है वो G20 ममालिक की तरफ से होता है। क्वेश्चन नंबर 9. When the NAB Third Amendment Ordinance 2021 came into force? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 31 October. Through the amendment, the Supreme Judicial Council's power to remove NAB chairman would be performed by the President. Question number 10. According to the UNESCO data, killing of journalists decreased how much % during last 5 years, 2016 to 2020? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20%. The data report was published on 1st November 2021 in connection with International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Question number 11. According to latest research, how much amount of ice melted in Greenland which could raise risk of global flood? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3.5 trillion tons. The research data was issued on 1st November 2021. Question number 12. Where the 2-day UN's COP26 conference held in which more than 120 head of states participated in November 2021? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लासगो. Glasgow is the largest city of Scotland, United Kingdom. Question number 13. Who crossed the first time New Zealand's Cook Strait in an electric plane in November 2021? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गारी फ्रीडमैन. He made a history by becoming the first person to cross New Zealand's Cook Strait in an electric plane. Question number 14. Who won the Booker Prize on 3rd November 2021? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेमन गलगुट. He is South African author and playwright who won the प्राइस ऑन हिज नोवेल द प्रॉमिस. अच्छा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो बुकर प्राइज़ है वो उसकी मतलब जो है किस तसनीफ़ पे या किस राइटिंग पे दिया गया है, तो उसका नाम है द प्रॉमिस और ये एक नावल है. क्वेश्चन नंबर 15. हु इज़ नॉमिनेटेड फॉर न्यू पाकिस्तानी एम्बेसडर इन USA? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मसूद खान. He joined Foreign Service of Pakistan in 1980 and went on to serve in various diplomatic positions till 2015. He also served as 17th Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir. Question number 16. Which country became first to approve anti-COVID pill
ऑन 4 नवंबर 2021। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूके। The announcement was made by साजिद जावेद, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये भी याद रखें कि ये एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यूके के वो कौन हैं, तो वो हैं साजिद जावेद। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव्ड इन अ ड्रोन अटैक ऑन हिज रेजिडेंस ऑन 7 नवंबर 2021। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इराक। इराक के देखते हैं कौन है प्राइम मिनिस्टर। ये पहले एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है कि इराक का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, या दूसरे कंट्रीज़ के भी पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखें। मुस्तफ़ा अल काज़मी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, और ये मई 2020 से पोजीशन में हैं। बरहाम सालेह इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो बरहाम सालेह जो है वो प्रेसिडेंट हैं, मुस्तफ़ा अल काज़मी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इराक इज़ लोकेटेड। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इराक जोग्राफिकली जो है वो किस कॉन्टिनेंट में, उस कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेस्टर्न एशिया। तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, लेकिन उसका जो कौन सा मतलब पोर्शन है तो वो है वेस्टर्न एशिया। मज़ीद जानते हैं, बगदाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इराक। इराकी दीनार इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इराक। नेम ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ इराक इज़ द काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। Question number 19, when NA passed NAB Ordinance and Journalists Protection Bills 2021। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 8 नवंबर। 8 नवंबर को जो है ये बिल्स कौमी असेंबली से पास हुए। दी अपोजिशन पार्टीज हैड रिजेक्टेड दी बिल्स। तो अपोजिशन पार्टीज ने इन बिल्स को रिजेक्ट कर दिया, ताहम जो ये दोनों बिल थे ये पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, विच वुमेन एस्ट्रोनॉट बिकेम फर्स्ट टू वॉक इन द स्पेस। स्पेस में घूमने वाली पहली औरत का एजाज़ किसने हासिल किया रिसेंटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वांग येपिंग। शी इज़ चाइनीज़ नेशनल हु मेड रिकॉर्ड ऑन 8 नवंबर 2021 along with her team completed a 6-hour stint outside the Tiangong Space Station is a part of its ongoing construction. Tiangong means heavenly place. Question number 21, which birthday of Allama Iqbal was celebrated on 9th November 2021? 9 नवंबर 2021 को अल्लामा इकबाल का कौन सा बर्थडे मनाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 144। Allama Muhammad Iqbal, the national poet of Pakistan, was born on 9th November 1877 and died on 21st April 1938. Question number 22, who is interim foreign minister of Afghanistan? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर मुत्तकी। हसन आखूंद इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान। याद रखें कि अफ़गानिस्तान के जो मौजूदा अभी प्राइम मिनिस्टर हैं इंटरम, वो हैं हसन आखूंद। एंड अब्दुल हकीम इसाक ज़ई इज़ चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। तो ये थे आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट MCQs के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।